करके ये किसी को भी मारते जाएंगे और लोग मरते जाएंगे, ये कब तक चलेगा? ये एक ऐसी सीरीज है जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही, और जैसे कि और भी लोग आपसे बात करना चाहते हैं, मैं दो चार लोगों को और लेता रहूंगा साथ साथ, ताकि वो लोग भी जी। आपसे बात कर सके। जाफरीन, प्लीज आप बोलें, क्या कहना चाहती हैं? Thank you so much, Varun, for reconnecting me. Hello, sir. Today, Disha's 1 year anniversary has passed. It's very sad that till now, not a single affair is registered. I have been studying and analyzing this case since I'm trading in the Twitter family for and just, keeping my justice fight for Sushant. Lot of botches. Mumbai police, MV government, Maharashtra government, everyone hybridly together is trying to bury this case. Why? Where is Rohan Roy? If the person is missing more than 1 year, there should be a missing report. He is not traceable for more than 10 months. Under law, if a person is missing for 24 hours, a missing report should be filed from family. Did family file any missing report? No. That means anyhow there is an underground connection. If he is dead, where is his dead? Where is his dead body? And we have seen a lot of previous cases that GI is murdered but declared as suicide by Mumbai police. But there was a photo. And Sushant case in 14th June morning, they had a plan. Mumbai police had a plan to declare his and showcase it as a suicide. So, with very early stage, they have published the 14 June's in-room pictures and videos in Facebook. Whenever the reaction was coming, immediately they deleted the pictures. But in Disha's case, there is not a single picture is published. Why? The time of death of Disha is very horrific that it's the time of death of Disha is not clear yet, whether it is 7th June night or 8th June night. And the postmortem has been done at 11. And they have shown this postmortem, I have analyzed that, and this is horrible. इसको कहीं नहीं, you can justify it that के contradictory बहुत सारे statement है. इसको multiple injury आया है दिशा को. आप 14 फ्लोर से गिरी हो तो आपको हड्डी टोटली क्रश हो जाएगी. There is not a single fractures of the bone suspension, and not the blood come out, and the anal vagina swab that has been collected. Why? So suicide आप कैसे declare कर सकते हो without any forensic investigation, without any crime scene investigation, without any involvement of the lawyer, doctor? All the committee together will decide what are the type of death. There is a different types of death. Fire incident होता है तब इसको accident बोला जाता है. आप 14 फ्लोर से अगर गिरी भी हो तो वो तो एक एक्सीडेंट भी हो सकता है. जैसे दिव्या का एक्सीडेंट बाय डेथ बाय एक्सीडेंट डिक्लेयर किया कि उसको सुसाइड डे 1 से ये मुंबई पुलिस को एक ही बात दोहराया जा रहा है, सुसाइड. एंड सो फ्रॉम द डे 1 they are trying to hide something big. And for the Sushant's case, it's दिशा का 8 जून का हिस्ट्री जब तक सॉल्व नहीं होगा, we cannot come to the 13th June mystery. Never ever. And this scene has not started since 8 or 7. The conspiracy has started before the June. देखिए आप अगर दिशा का इंस्टा प्रोफाइल एंड सोशल एंगेजमेंट चेक करेगी तो उसको 15 डेज का एक गैप है फ्रॉम 15 एंड टू 7. ये अचानक 8 में ये फेक बहुत पुराना रेड कलर का टॉप्स पहन के दिशा एक पोस्ट किया है पिक्चर. ये कहाँ से आ गई? उसका अगर सुइसाइड मेंटालिटी था, अल्कोहलिक था, पार्टी में जाना था, तो उसका फ्रेंड के साथ ग्रुप फोटो नहीं क्यों नहीं है? Rashmi Desai on the public interview, she has said that she has talked very casually about October's क्या लोनावाला planning or something else. But इतना राज है इसके इन दोनों के. रोहन रॉय का कन्वर्सेशन सुशांत सिंह राजपूत पहली बात तो क्या थे उसका मिसिंग एंड उसका दिशा का फ्रेंड्स इंटरव्यू इज मिसिंग. तो अब कनेक्ट नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑल आर ट्राइंग टू हाइड. And the big thing is that the postmortem, any forensic investigator को आप ले आओ, any doctor को ले आओ, any lawyer को ले आओ, everyone can challenge the postmortem report.
एक जगह में बोला हुआ है कि उसका इंटरनल बहुत ब्लीडिंग हुआ है। तो आप जब 14 फ्लोर से गिरी होगी तो आपको इंटरनल ब्लीडिंग कैसे होगा? आपको तो फ्रैक्चर होगा, हेड इंजरी होगा, आपका फेस डिस्ट्रॉय हो जाएगी। you cannot you cannot identify your face when you just drop out। आप एक डामी करके देखो, आपको फेस में पहले इंजुरी आएगी, your face will be totally destroyed। तो वो suddenly first of all if she would alive while jumping from 14th floor, दिशा ने आवाज क्यों नहीं की? shout out किसने सुना? okay, an alive person will definitely shout out even if she jumps from second floor। 14 फ्लोर से गिरा है, पूरे कॉलोनी में गैदरिंग हो जाएगा। एंड ऑल्सो वेयर इज द कार? ये आउटसाइड गेट में बॉडी पाया गया है। वेयर इज द ब्लड स्ट्रेन्स? वहां पे तो बॉडी का पूरे तहस नहस हो जाएगा। आई डोंट नो हाउ मुंबई पुलिस आइडेंटिफाइड विदाउट एनी आधार कार्ड and social SI identification card her face and also the Insta post is very शक्ल की जैसे आपने बात की, हमने दिव्या भारती का फेस की फोटोज देखी हैं जब उनको क्रिमेशन ग्राउंड में लेके जा रहे थे। वो 5th फ्लोर से गिरी थी, 5th, और उनका फेस डिस्टल सा हो गया था। यू नो इट वाज लिटरली, उनको जिसे कहते हैं ना, फेस को इकट्ठा किया गया था कि फेस ठीक लगे, बिकॉज़ शी वाज एन एक्ट्रेस। दिशा सालियान अगर एनीथिंग अबव 10th फ्लोर से कोई गिरता है तो लिटरली बहुत कम ही चांसेस हैं कि फेस और कुछ हड्डियां बचे। अब तो आइडेंटिफिकेशन विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड the more I study, the more I get very terrified and how much technical watch up has been done in this case. And you know, the Pankaj, the ambulance driver on 9th morning when Mumbai police called, it was 1:30 p.m. And Disha's, as per Nitish Rana's statement, 8:30 to 12:30, Disha's phone was switched off. And the last call incoming was happened on 8:30। तो फोन ऑन किया गया है आफ्टर 12:30 एंड एक घंटे के अंदर आप सोचिए, विद इन द 1 hour ऑफ टाइम मुंबई पुलिस कॉल्ड द एम्बुलेंस ड्राइवर। यहाँ पे एक मालवाड़ के आसपास यहाँ पे एक सुसाइड केस हुआ है, कम टू पिक अप द बॉडी। तो उसको कैसे मालूम पड़ गया ये 14th फ्लोर में in within 1 hour? You see, lot of incident happened. Number one, Disha slipped off. उसका 25 मिनट्स के बाद रोहन रॉय नीचे गया, उसका एक हल्ला तो मचेगा, नेवर विल गैदर। तो मुंबई पुलिस को कॉल किया, मुंबई पुलिस इमीडिएटली पंकज को बोला यहाँ पे एक सुसाइड हुआ है। तो इतना फास्ट कैसे हुआ है? इतना सीक्वेंसेस ऑफ इंसिडेंसेस एंड बोला जा रहा है कि दिशा वाज अलाइव एंड उसका बॉडी भी वार्म था जब आइडेंटिफाइड दिशा वाज अलाइव। उसका नैरेटिव है, उसको 3 हॉस्पिटल में लिया गया था। फर्स्ट ऑफ ऑल एक प्राइवेट हॉस्पिटल, देन एक नर्सिंग होम, वो रिजेक्ट किया टू एग्जामिन दिशा's बॉडी। मुझे एक बात बताइए, अब देयर आर लॉट ऑफ पीपल देयर कि अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल की ड्यूटी डॉक्टर्स, इफ दे वुडंट सी एनी सीरियस केस ऑफ मर्डर सिम्टम or rape symptom or any physical assault, why would they deny the emergency case? ये एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल का ही केस होगा कि अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल डिक्लेयर करे कि ये डेथ है एंड इफ इट इज मर्डर डेथ, इट रिक्वायर इन्वेस्टिगेशन, वो एक प्रॉब्लम में फंस जाएगी। इसलिए ये सौदप्ते हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। एंड वहां पे भी पंकज, उसका इंटरव्यू आप देखिए रिपब्लिक में, इट्स अ वेरी इंफॉर्मेटिव सोर्स, कि उसके पूरे बॉडी में फ्रैक्चर्स था, ब्लीडिंग वाज कम आउट, 1.5 इंच का डीप चिन में एक होल था। तो ये होल कैसा है? या एंड उसके हैंड्स वर टोटली डिस्ट्रॉयड, ट्विस्टेड था। तो आप क्या ऐसे, आई मीन व्हेन यू डू सुसाइड और जंप ऑफ, आप क्या हाथ पीछे मोड़ के सुसाइड करेंगे? व्हाट वाज द पोजीशन? एंड ये पोस्टमार्टम, इसका आई डैमेज था, टूथ इन फ्रंट टूथ, ये लो जॉ और अपर लॉ ये मेंशन नहीं किया, बट फ्रंट टूथ डैमेज था, उसका फुल बॉडी से ब्लीडिंग हो रहा था। So lot of symptoms, it doesn't trigger to suicide at all.
जो लड़की 7 जून के इमरजेंसी कॉल कर रहा था नाइट पार्टी अटेंड करके, ये 8 जून की पार्टी भी मुझे इतना स्ट्रॉन्ग और सॉलिड नहीं लगता ये ग्राउंड की। जो पैनिक होगा, सुशांत को वो कॉल किया 7 जून की नाइट को 100 में 6 टाइम्स विदाउट एनी रेस्पॉन्स, एंड सुशांत को बोला कि आप घर के बाहर मत आओ, आई मीन डोंट लीव योर होम, and lot of long distance calls she had done. She had called Ankita and lot of friends. रेशमी देसाई को तो पहले 7 जून की आफ्टरनून में शायद कॉल किया गया है, बट मुंबई पुलिस डिडंट इवन डिक्लेयर दिस द कॉल रिकॉर्ड। तो 100 का आप दिशा का अपनी आवाज में डेफिनेटली रिकॉर्डिंग होगा। गवर्नमेंट पुलिस को फोर्स करना चाहिए कि ये 100 की रिकॉर्डिंग पब्लिश करे, ये मास पब्लिश करे क्या। अच्छा, एक पॉइंट ये कि एम्बुलेंस वाला जो था ना, जो मैंने पढ़ा है उसमें ये था कि शायद दिशा के जो फ्रेंड्स थे ना, वो लेके गए थे अपनी गाड़ी के अंदर दिशा सल्यान को सिविल हॉस्पिटल, और उसके बाद और फिर वहां पे वो जो एम्बुलेंस गाय पहुंचता है क्राइम सीन पे, तो वहां पे वो बॉडी पहले ही ले जा चुके होते हैं इनके फ्रेंड्स। फिर वो वापस जब दूसरी बॉडी को पिक करता हुआ वहां हॉस्पिटल पहुंचा, तब तक वो पहुंचे होते हैं। ये बात उसने स्टेटमेंट में बताई थी इंटरव्यू में। और तब वो देखता है दिशा की बॉडी को वहां पे, और तब वो देखता है कि होल है उसकी दिशा की चिन पे। बाकी एक जो चीज आपने स्टार्टिंग में कही थी ना कि मुंबई पुलिस जिस तरह से हम देख रहे हैं इतना प्रभावित कैसे कर सकती है चीजों को, तो ये तो बहुत क्लियरली इतिहास गवाह है इस चीज में, तो कहेंगे बहुत क्लियरली जब भी बड़े बड़े प्रभावशाली राजनेता लिप्त होते हैं ना, तो पुलिस उनके लिए सारी चीजें करती है मैनेज। और ये ऐसा पहली बार नहीं देखने को या सुनने को मिलेगा कि पुलिस ने कभी मैनेज किया हो। ये यूपी उठा के देख लो, यूपी उदाहरण है। जिस तरह से आज वो सीबीआई ने उसको पकड़ लिया, वो कौन सा व्यक्ति है, रेप विक्टिम, बीजेपी का ही मंत्री था, लेकिन पकड़ा गया ना। जब रेप करता है उसके पूरे परिवार को प्रताड़ित किया, पुलिस ने पूरा साथ दिया था, लेकिन बाद में सीबीआई बैठती है, जांच होती है, आज वो जेल के अंदर है। तो ये समझने वाली चीजें, पुलिस डेफिनेटली साथ देती है बड़े बड़े प्रभावशाली लोगों को, लेकिन एट लास्ट मैटर कब करता है, जब जनता आवाज उठाती है। देखो, सबसे ऑब्वियस सी बात है, एक चीज समझनी पड़ेगी, ताकतवर सबसे ज्यादा वही है पॉलिटिशियंस जो होते हैं, क्योंकि वो सरकार चला रहे हैं, चीजों को मैनेज कर रहे हैं। लेकिन एट लास्ट मैटर यहां से पूरा का पूरा हो जाता है कि जैसे ही पॉलिटिशियंस लोग तानाशाही पे आ जाता है ना, चीजों को अपने हिसाब से मैनेज करते हैं और पब्लिक उसके ऊपर कुछ रिएक्ट नहीं करती, तो इनकी पावर बढ़ती रहती है। पुलिस इनके लिए चीजें मैनेज करती है, क्राइम को बढ़ाती भी है और कम भी करती है, मतलब इनके हिसाब से चीजें चलती है जो इनके फेवर में होता है। लेकिन जब पब्लिक गैदर होती है तो ये पॉलिटिशियंस के लिए दिक्कत होती है, क्योंकि पक्ष विपक्ष जो सारी चीजें हैं, तो विपक्ष को दिक्कत होगी, फिर पक्ष को दिक्कत होगी, क्योंकि पब्लिक का प्रेशर है, तो वो उसके हिसाब से फिर रूपरेखा तैयार होती है। और सेम पार्टी में भी आपको ये भी समझना पड़ेगा, जैसे एमवीए की सरकार है, तो इसके अंदर चाहे से चीफ मिनिस्टर कोई हो, लेकिन चलाने वाला कोई और है पीठ पीछे बैठ के। सबको पता है कि भाई एनसीपी के लीडर चला रहे हैं इस पूरी सरकार को बैठ के। तो ये समझने वाली चीज है कि जैसे ही उनके ऊपर इतना ज्यादा पब्लिक प्रेशराइज करेगी ना, वो अपनी छवि नहीं बिगाड़ना चाहेंगे, फिर उनके लिए कुछ नहीं जाता अगर वो सीएम का पत्ता गिरा भी दे, उसको जेल में भी जाने को अगर हो जाए, तो ये वाली चीज ऐसे है। तो पब्लिक का प्रेशर एट लास्ट मैटर करता है, तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि पब्लिक बोलती रहे। तो ये डर रहेगा पॉलिटिशियंस को कि वो भैया तानाशाही नहीं कर सकते, अपने हिसाब से लॉ को तोड़ मरोड़ नहीं सकते, तो पब्लिक को अवेयर होना बहुत आवश्यक है। Yes, public awareness is very important, but एक PIL तो launch किया गया था on August, and Supreme Court agreed to hear the plea. Unfortunately, Mr. Binder Gupta का वो PIL dismiss कर दिया गया है, and Bombay High Court बहुत supportive है मुंबई पुलिस की एक्टिविटीज को लेके। आप एक डेथ केस हुआ है, उसको कैसे 60 डेज के बाद इन्वेस्टिगेशन आप मुंबई पुलिस चालू कर सकता है, एंड ओपन लेटर बोला है कि किसी को अगर कोई इन्फॉर्मेशन हो तो आकर हमें दीजिए। अरे उसका पेरेंट्स का बोलते बंद कर दिया गया हो तुम लोग, एंड ओपन इन्वेस्टिगेशन भेजोगे तो कौन आएगा? रोहन रॉय is not traceable for 1 year, who is the fiancé. The Disha's friends are telling continuous lies in different medias. So ये सब ड्रामाबाजी ना करके सॉलिड एक चीज तो नहीं होगी ना, अपने कानून अंधा होता है। ये एक्चुअल में बहुत एक फेमस लाइन है। एक्चुअल में ये अंधा क्यों कहा गया है कि कानून सिर्फ और सिर्फ सबूत के ऊपर चलता है। अब जब तक अपन जाके ये पेश नहीं कर सकते कि फैमिली का मुंह बंद किया गया है, जब तक हम इस पे प्रूफ नहीं दे पाएंगे, कोर्ट मानना ही नहीं चाहेगा। वो इस तरह से मैं अंधा हूं
आप मेरे को एविडेंस ला दो, हो सकता है मेरे दिमाग में, मतलब हो सकता है जज के दिमाग में भी ये चीज चल रही हो, बट जब तक उसके सामने हम एविडेंस नहीं रख दे, वो इसके ऊपर बोलेगा ही नहीं। ये ऐसी चीज है जो भैया बहुत जरूरी है। इसीलिए पब्लिक प्रेशर, मैंने कहा कि पब्लिक प्रेशर जब करता है ना, तो फिर उसके बाद कोर्ट भी चीजों को करता है भाई अपने हिसाब से, कि भाई पब्लिक का प्रेशर आ रहा है, इसलिए हमें इसके ऊपर निष्कर्ष लेना पड़ेगा। तो इसीलिए पब्लिक प्रेशर बहुत जरूरी है। मैं तो एक बार वही वाली चीज। बोलिए। I'll let Girija ji also say something. Girija ji, please go ahead. आप म्यूट हैं गिरिजा जी, या म्यूट। So अभी जो मैडम बात कर रहे थे, she was talking about a mark in the chin. The same kind of mark was also found in Zia Khan's chin. If you see the postmortem, the pictures, the same kind of mark, number one. Second, there are such contradictory reports. The ambulance driver says he picked up another body because when he came here, the body was not there. He picked up another body and then he went to the hospital. At that point of time, he saw Disha's body being taken out of the car. And he says at that time she was wearing dress. Okay, there was some grey trouser and another color top. That is what he said, red top or something. So that is again to be seen. Whereas the hospital clearly says somebody went there. The person says there were no clothes on her. It is so very confusing. And the day in which it came was 11th. That is what the hospital fellow says. Whereas this fellow saw it on the same day when the ambulance fellow saw the body getting down on the body from the hospital on the same day. Whereas the another person who is looking at the records, hospital record, says registration entry is there only on 11th. So we do not understand what happened in those 2 days. Okay. Now, if Bollywood is getting very angry that, today we want to boycott Bollywood, if they had done what we needed to have done long back, that is cleaning Bollywood, then this would not have happened. It is like inside your own house, you keep on allowing garbage, piling up garbage. And then when it becomes too much to bear, the stink becomes too much to bear, and nobody around can live there, and they all run away, then you say, okay, I'll throw my garbage out. Even if they come to that, that is how the condition is today. Right? So I actually read a poem by Sarah Cynthia South. That is what she said. I read it in the morning. I don't want to read it today. Now, but what the poem says is simply this only. You would not take the garbage out. She would scour the pots and scrape the pans, candy yams and spicy hams. And though her daddy would scream and shout, she simply would not take the garbage out. So for a long time, people have been saying that there is drug mafia, that there is connection with the underworld, that there is, money laundering, that there is child molestation, that there is a casting couch. All this has been going on for a long time. And there are people whom we have respected, revered, worshipped, prayed for. And all these people could have taken the lead and cleared it. Hi guys, we cannot go on doing this. If they had done this and taken a strict hand, then this situation would not have come at all. These people wouldn't have lost their lives also. So it is totally the irresponsibility of the people within Bollywood itself for whatever condition they are today. Now people outside, when we go, they may form a sort of a cauldron, and they are trying to prevent us from entering it. But how long? The truth will anyway come out, because by and by slowly people there are coming out. And they are talking about how they have been penalized, how they have been troubled, how they have not been treated well. Slowly this will also come out. Truth has a way of coming out. However much, it is just like water. However much we close it, it will still find a way of coming out. It will not stay there. Only thing is, how long is the question. It may test our patience, but we all have to be strong, because like fools, we have allowed all this to continue for so many years. Now that we have started the fight, we have mobilized this, so many of us have come together. Now all of us have to stay together and gather more people, talk with other people and explain why, if they keep quiet about it, tomorrow a daughter or a son who goes to a normal office may not come back alive. That's it. Because it is spreading its tentacles everywhere. These people have a lot of money, and they are also buying offices. They are buying properties left, right and center.
They're establishing companies. Our children will go and work there. They will not even know who is the boss. And then if something happens to them, what are we going to do with that? The minimum that we can hope is for a life of safety. This girl, Disha, her parents did not want her to take up this profession. They were not very happy. But there's nothing wrong. She had conviction in her abilities. She had some good dreams. She had aspirations. She wanted to work straight. She thought she will be able to set the record straight if something, and it was her misfortune that she came to know some things which were existing there. Was it her fault? If something happens in front of your eyes, what can you do? Right? And that girl, she wanted to do something. She took a stand, fine. Again, that is her. So all the more reason why all of us should stand for her, because she took a stand. All the more the reason for all of us, because whatever she did is for our future generation. She has lost her life. She's not going to gain anything out of it. So this is the most important thing that we need to do. And Bollywood has to realize they did not clean up their own dirt. The the stink has reached the whole world. So that is why now we have set out to clean it up. Now it is too late for them to do anything. Until we clear the whole thing, this Bollywood will not thrive again. Everything has to be cleared. The disparity has to be settled. There is somebody being paid 20 crores for nothing, and there is somebody who is not even being paid 20,000 for slogging the entire day and putting their life to difficulty. Right? So why should we allow all this? It has to be a disciplined, organized sector like any other sector. We have to bring in rules, regulations, policies, and then let this industry thrive. We will be happy. We don't want any real artists to perish, but we don't want such gangsters also to thrive. That is very important. Thank you so much. And Sohamji. Hello. Good luck. जैफरिन जी, बोलो जैफरिन ने बोला ना कि मतलब दिशा, मैं उन्हें दिशा का इंस्टाग्राम पोस्ट के बारे में बोल लूंगा. उसका लास्ट पोस्ट का फ्लावर इमोजी देखा है? कौन यूज करता है ऐसा फ्लावर इमोजी? रिया चक्रवर्ती. देखिए, फ्लावर इमोजी का जो चक्कर है, इसका जो नोट्स देगा, एक यू कैन चेक द स्टेट ऑफ माइंड. When on 8th June, if you are in panic situation, you will definitely not post such in Insta. She is a very lovely girl, happy girl. You can see she is a pet lover. On 19th, she is uploading a old picture, and you can see the red tops. The very important point, why the red tops is there. When she fall out from the building, the witness of the Disha's friends is mentioning उसका एक red कुर्ता था, एक ग्रे पैंट था. तो ये फ्लावर इमोजी, रेड, ये सब कहानी बनाई हुई है. इट्स अ बिल्ड अप क्राइम सीन. So this is the red top and the grey, this thing that the ambulance fellow also talked about. So probably they were tutored. We have no idea. ये कॉमन, जबकि एक वो वाली चीज है कि इतने समय बाद किन्नी की मृत्यु के अगर एक एम्बुलेंस गाय से पूछा जाए और उसके माइंड में ये चीज रह जाए कि उसने कपड़े क्या पहने हुए थे. ये हो ही नहीं सकता कि जहां पे आप बॉडी देख के शॉक में जाओगे कि भैया बॉडी में इतना हुआ और आपको कपड़ों का कलर दिखाना है. ये हाँ, and in postmortem, sorry, in postmortem, the doctors mentioned that उसका heel के ankle में चोट आया है. The very funniest thing that वो लेफ्ट एंकल क्या राइट एंकल, ये इम्पोर्टेंट है. उसका फ्रैक्चर मेंशन नहीं किया गया. मेंशन किया गया कि उसका हील वाले जो जगह है इन द लेफ्ट एंकल देयर इज अ स्मॉल फ्रैक्चर, एंड उसका हेड इंजरी है, बट हेड फ्रैक्चर्स है, बट हेड इंजरी नहीं है. फिर इन द कंक्लूसिव रिपोर्ट दे हैव मेंशन दैट देयर इज मल्टीपल इंजरीज. ओके, सो ये सब जो कॉन्ट्रडिक्टरी है ना, ये बहुत ही एक घटिया किस्म का प्लानिंग किया गया है टू वॉच अप दिस मर्डर. ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट इज एनफ एविडेंस टू एस्टैब्लिश द न्यू केस ऑन Disha. So I would, through this live stream, I would urge all the administration, please focus on this case, reopen Disha Salian case. It has been 1 year.
Hello, am I audible? Yeah. जी Yes, please go ahead. Sorry, the calls are coming. So in 1 year, if we can't solve the 8th June mystery, we cannot solve the 13th June mystery. सुशांत केस कभी भी एक कंक्लूसिव रिपोर्ट में नहीं जाएगा अगर दिशा का केस सॉल्व ना हो. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि दोनों यंग टैलेंट शुड गेट जस्टिस. अच्छा, ये कमेंट है ऐसे हाँ, का, एक इसका मैं जवाब दे सेकंड सकता हूँ? गुरु, एक सेकंड गुरु. या बोलो सोहम. मैं ये जवाब दे सकता हूँ ऐसे की कमेंट का जो स्क्रीन Yes, पे yes, फ्लैश हो रहा है? प्लीज. ये कमेंट है, इवन इफ द कल्प्रिट्स आर पनिश्ड, व्हाट्स द गारंटी दैट दे विल हैव अ टेरिबल टाइम इन जेल. ऐसे जी, इसके ऊपर देखो, एक सिंपल सी ये चीज है कि ये तो कोई यहाँ पे बैठ के जो जस्टिस के लिए लड़ रहा है वो ये गारंटी नहीं दे सकता कि भाई क्या होगा उनका. लेकिन ये उस तरह से है कि आपको क्या कहा गया है कि आप जस्टिस के लिए लड़ो, है ना. अब आप ये चीज पहले से ही डिसाइड कर लोगे कि उनका कुछ नहीं होगा क्योंकि इतिहास में आज तक नहीं हुआ, और आप इस चीज को, इस लड़ाई को यहीं छोड़ दो सोच के कि भैया कुछ होगा ही नहीं क्योंकि आज तक नहीं हुआ. अगर तो ये एक मूर्खता होगी, मतलब हमारे लेवल पे एक मूर्खता होगी कि हमने प्रयास ही नहीं किया, और कल को जाके हम कभी किसी हमारे करीबी को देखेंगे कि उनके साथ कभी ऐसा हो गया, तब हमें पछतावा होगा कि उस टाइम पे अगर हम लड़ लेते और आवाज उठा लेते, और अगर जस्टिस मिल जाता, जो आप कह रहे हो ना कि भैया नहीं मिलेगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो ये वाला एक नहीं रहना चाहिए कि आगे जाके आपको पछतावा हो. तो आप अपना बेस्ट दो, और जैसे कि भगवत गीता कह रही है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो. तो कर्म आपका अच्छा होगा तो फल हमेशा अच्छा होगा. तो ये वाली चीज के ऊपर अगर आप चलोगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा ही फल मिलना है. तो जस्टिस हमें डेफिनेटली मिलेगा, और ये जेल में जाएंगे और सड़ेंगे भी. सही कहा. ऑलराइट, मैं सिर्फ इतना कहूंगा इस टाइम, जाफरीन जी, मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा. मैं किसी से बात कर रहा हूँ जो आपको जानते हैं, तो वी विल कनेक्ट एंड विल टॉक मोर अबाउट इट. मैं बाकियों को भी मौका देना चाहता हूँ. गुरु, प्लीज मेक अ कमेंट या क्वेश्चन जो है. लेट्स बी बैक. नहीं, मैं सिर्फ एक बार बोल रहा हूँ, चाहे सुशांत हो, चाहे दिशा हो, चाहे जिया हो, मारा तो हमने ही है खुद, क्योंकि हमने भी बॉलीवुड को सर पे चढ़ा के रखा था. अब तक देख लो अंजाम. उन्होंने नहीं, हमने ही मारा है सुशांत को. हम जिम्मेदार है. बिल्कुल. कि एक्चुअल में आज ये छपरी जैसे इतने प्रभावशाली बन चुके हैं, तो इसके कसूरवार हम ही हैं. कि जब हमें पता लगता है कि उन्होंने भैया ब्लैक बक को मार दिया, एक आम इंसान के ऊपर गाड़ी चला दी, भाईजान बोलते रहे, बादशाह शहनशाह सर पे चढ़ा के रखे. तो ये नहीं होता. देखो अंजाम देखो. बट ये अच्छा है कि आज पब्लिक जाग चुकी है और ये चेंज आ रहा है कि आज इनकी स्थिति क्या है. एग्जैक्टली. ऑलराइट, शशि जी, कुछ क्वेश्चन या कमेंट? कमेंट तो बस वही है, आज दिशा का 1 साल हो गया ना, तो दैट इज व्हाट. एंड फ्यू डेज बैक वी वर सेलिब्रेटिंग हर बर्थडे आल्सो. मतलब जय हिंद, जय भारत. तो हम भाई को भी, आप पहली बार आपसे बात कर रहा हूँ मैं, एंड शादी मुबारक हो आपकी. धन्यवाद. जय हिंद. एक बात तो मैं जरूर कहूंगा कि मुझे नहीं पता सोहम भाई के वीडियोस बाकी कौन किसने कितने देखे हैं. जो भी आता है शादी के वीडियो के बारे में तो बहुत तारीफ होती है. ये बात है, हर कोई इसके बारे में सबने बहुत, मतलब मैं एक ढंग से इनको फॉलो करता हूँ, इसके लिए मुझे मालूम पड़ा कि ये शादी कर चुके हैं. अच्छा. जैसे वो गए थे शादी के लिए, एंड देन एक आई थिंक आपके वाइफ ने एक बार पहली बार किया था वैसा तो जी. So, but yeah, I think you've got a very good partner or wife, because I think she supports your participation in the movement. So वैसे वो बहुत अच्छी बात है. सब फैमिली का सपोर्ट इज वेरी इम्पोर्टेंट. Yeah, वैसे coming back to Disha, coming to that, okay, I mean, we all know the circumstances under which she died. So पता नहीं, in one way I feel that okay, yeah, justice will be served, and in a way I think we should try to see कि दिशा के केस के बगैर भी एसएसआर का केस सॉल्व हो सकता है क्या, क्योंकि मतलब एसएसआर को ऐसा नहीं था कि दिशा के मौत के बाद ही कुछ कचरा स्टार्ट हुआ था. मतलब बहुत महीनों से या बहुत सालों से ही चल रहा था. 2017 का वो जो वीडियो जिसमें वो एक पब से बाहर निकल रहे हैं, उनको वो आदमी धक्का दे रहा, तो वो सब तो बहुत पहले से ही चल रहा था ना. सो इट माइट बी दैट ओके, या दोनों केसेस जॉइंटली इन्वेस्टिगेट होगा तो अच्छा ही है, बट अगर सेपरेटली भी करना होगा तो करेंगे तो अच्छा है. एंड वंस आई थिंक एसएसआर का केस में जस्टिस आ जाएगा, देन ऑटोमेटिकली बाकी केसेस में भी टेम्पो बढ़ने लगेगा. एंड देन या होपफुली भी, जैसे संदीप या who is that guy, Sandeep Mangra,
who knows, आसिफ बसरा जो भी जिनकी भी मौत हुई है बाद में, so सबके केसेस में आना चाहिए ऐसा मुझे लग रहा है. तो just keeping the fingers crossed, and hopefully we should see some movement in the coming days. एनसीपी जो भी कर रही है उसके हिसाब से वो अगर आ जाएगा तो और क्या चाहिए. अभी एक एक करके पुलिस अफसर्स भी जो इन्वॉल्व थे मेरे ख्याल से सबको डिसमिस किया जा रहा है. एंड डिसमिसल इज अ वेरी बिग डिसीजन, एंड अगर उन्होंने क्रिमिनल एक्टिविटी कुछ किया है तो ही उनको डिसमिस किया जाएगा. बट ऐसा कुछ प्रूव हुआ नहीं था, इसके लिए डिसमिस ऐसा तो हो नहीं सकता है. कुछ तो प्रूफ मिला है मुंबई पुलिस को भी इन सब के खिलाफ, चाहे वो वाजे हो या काजी हो या वो माने हो, जो भी है. सो प्रूफ मिला है, इसके लिए आई थिंक दैट इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. And let us hope that okay, things will turn for the better in the coming days. And coming to CBI, I think उनके पास officially 1 साल का टाइम होता है. And पिछले साल अगर हम लोग देखें तो they started only in August. तो मुझे नहीं लगता कि वो अगस्त से पहले कुछ ऐसा मतलब खुलासा करेंगे ऐसा, because they want to be obviously watertight in whatever way. And only in August, I think we'll see some maybe information getting revealed on the cases. So that way we should be hopeful. Let us not take any hasty decisions. Is my humble request before then. Let us continue to keep the moment. Abhi we have waited 10 months, so another 2 months August will be here, and then we'll start. So that is when we should all be together and see to it that okay, justice is delivered. And then maybe there will be quite a few reforms is what I see coming up in the judicial system. Because abhi jo bhi hai, it is not worth, because it is only encouraging criminals to commit more and more crimes only, rather than having any kind of respect for the law. So that's all I have to say, Varun. Thank you. Thank you so much. All right. Thank you. बोले तो हम क्या कहना चाहते हैं. मैं एक इसके ऊपर भी पॉइंट आउट करना चाह रहा था कि क्वेन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो तो सबसे अहम यहाँ पे रोल निभाती है इस पूरी जो ये साजिश जो चली है सुशांत के केस और इवन दिशा सल्यान के केस में भी. तो क्वेन के ऊपर कुछ बात हुई है कि जिस तरीके से रिया तो दिशा सल्यान कॉर्नर स्टोन में जैसे की थी, लेकिन अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, राहुल शर्मा का नाम इनकी माताजी ने लिया था, दिशा सल्यान की माताजी, जिसमें कहती है कि दिशा का जो मित्र था वो छोड़ के किस कंपनी में चला जाता है, क्वेन में, और वहां पे चाहता होता है दिशा सल्यान भी आए, बट दिशा नहीं जाती है. और क्वेन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी एक ऐसी कंपनी रही है जो यहाँ पे बहुत एक वो कहते हैं ना जिसके ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि हनी ट्रैप जो चल रहा है उसके अंदर भी क्वेन का नाम आना, पैसे यहाँ पे भाई रिया चक्रवर्ती के खाते में क्वेन टैलेंट मैनेजमेंट कंपनी डाल रही थी. तो ये सारी की सारी चीजें प्रश्न खड़ा करती है, क्वेन की तरफ जोड़ती है कि इतने लाखों रुपए जो रिया के अकाउंट में डाले, रिया की माताजी के अकाउंट में डाले, क्यों डाल रही है कंपनी. और सुशांत से जो इनकी मैनेजर भैया 10 करोड़ रुपए लेती है और बोलती है मेरा कमीशन है, ये अपने आप में प्रश्न खड़ा होता है कि भैया कौन सा ऐसा कमीशन आ गया जो 10 करोड़ रुपए का होता है. तो क्वेन के ऊपर प्रश्न खड़ा होना चाहिए. और कौन के ऊपर तो सिर्फ पैसों का ही नहीं, ड्रग्स का एक एंगल है, वो एक अलग साथ में चलता है कि ये जो रिलेशनशिप मैनेजर्स भी इन चीजों में इन्वॉल्व थे, ड्रग्स प्रोवाइड करने में, प्रोक्योर करने में, सप्लाई कराने में. तो ये दोनों कंपनीज देखा जाए, चाहे वो क्वान हो चाहे वो कॉर्नरस्टोन हो, और अब तो आई थिंक कौन सी कंपनी है, क्वान या कॉर्नरस्टोन, तो वो बन गई है ना करण जौहर वेंचर्स या समथिंग लाइक दैट. तो इनका तो वो कोलैबोरेशन भी अब हो चुका है. दे आर वन कंपनी जिसके अंदर सारा का सारा ये जो मल्टीमीडिया, सोशल मीडिया एंड ऑल दैट सब एक ही अम्ब्रेला के अंदर आ चुका है. तो ये तो कुछ और ही करने का इनका तो प्लान होगा डेफिनेटली. और anyways, thank you Shashank ji. Along with CBI, I think ED also should give some kind of a statement now. ED भी उतना ही चुप है जितना CBI है. तो I think because we have been saying right from day one that क्या 4 एजेंसीज आ चुके हैं, एंड ये तो बहुत बड़ी एजेंसी है, लेकिन एक्टिव तो सिर्फ एक ही है, बाकी 3 तो पता नहीं है ना, ये तो आया ही नहीं अभी तक इस केस में. So I think ED and CBI both should give some kind of a statement as to where this case is progressing. Right. बस उतना ही. Thank you Varun. Thank you so much. Sure. Thank you so much. Thank you. All right, Rijoy ji, I just want to be mindful अगले सेशन के लिए, but yes, Rijoy ji, you want to say something?
Varun, good afternoon. Thank you for allowing me a Sure. meeting after a long time. Yep. So, first of all, salute to the dedication and effort which you're still continuing in spite of 1 year has passed by, almost 1 year. Yep. It's a patient. I would say it's a long patient waiting for us. And as SSR warriors, we need to be patient because let us not forget that it's a very high-profile case. Hello, Right. can you hear me? Yeah. Yes, we can hear you. It's a very high-profile case because those people who are involved, when their names will come out, I firmly believe it will come out. Maybe 2 months, 3 months, 4 months from now, it might even topple the government. So that's the reason for which delay is happening. We can bring a lot of negative ideas, views into our mind and get demoralized, but that should not be the order of the day. The order of the day is that today, being Disha's this the unfortunate day last year, she passed off, and she passed off in a very brutal manner. And we should pray for his soul so that she's fine there. And at the same time, we should not forget those people who masterminded this entire thing and later SSR. I have two beliefs which I want to put in this session. Number one, first with SSR. SSR was not killed on 14th, it was 13th. I am 200% sure about it. 14th is completely an act, a story being narrated by lots of his friends, means his so-called friends, but actually they backstabbed him. And their narration also changed. And Disha was never thrown from 14th floor, and probably she might not even have gone to that Galaxy apartment from where she was told to be thrown. So she died, but before dying, she had told many things to Sushant, and then Sushant was also in a state of what to do. Though Sushant had all plans to expose, but unfortunately he was not given that opportunity. So I'm there, Varun, with all who are Sushant's warriors and Disha warriors, and continue to be there till the last day when justice, we will get the justice. So I am positive, I will be patient, and I am ready to wait for it. Thank you, Varun. God bless you. Thank you, Jaji. All right, Shilpa ji, please, आप कुछ कहना चाहती हैं? So yeah, the way. Hello. Yes. Good afternoon, Varun ji. Good afternoon. Is my voice audible? Yes. Okay. Sir, now I just want to know what exactly the CBI, now Dipti Pinnati has given certain diaries, okay? So is it confirmed that it is with CBI? Because after so many proofs handed over to them, I think some conclusions should come out. They can, apply 302 SSR. It's under section 302, and then start, proceed for investigation. But why keep on lingering? Yeah. पहले तो मैं सोहम से ही पूछूंगा, आई डोंट नो उन्होंने एसएसआर डायरीज के बारे में सुना कि नहीं। मेरे को जो पता है, जो लास्ट सेशन में हमने दीप्ति से बात की है, वो डायरीज सीबीआई के पास नहीं है, वो दीप्ति के पास ही हैं। बट सोहम, कुछ डायरीज के बारे में अगर आपको पता हो, कुछ कहना चाहते हैं? देखो, वैसे तो मैं इतना मैंने क्लोजली इसको नहीं देखा है, बट एक मैंने इमेजेस जरूर देखी। वही ना, ब्लैक स्क्रीन पे जो कुछ टेक्स्ट थे, अगर वो इमेजेस की बात हो रही है तो उनको जरूर मैंने पढ़ा था। और उसके पीछे का क्या है इतना मेरे को नहीं पता है, क्योंकि जो आप दीप्ति जी का कह रहे हैं उनको ना मैंने सुना अभी तक, तो इसलिए मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता। लेकिन मैं उस इमेज के ऊपर टिप्पणी कर रहा हूँ जो मैंने देखी थी, है ना, जो ग्रुप में शेयर हुई थी। तो उसके ऊपर मैंने जो पढ़ा, उससे मेरे को एक चीज ये समझ में आई कि वो इमेजेस उतनी चीजों को ही परिभाषित करती है जिस चीज पे हम पहले से बात कर रहे थे।
तो यहाँ पे एक मतलब कि साइकोलॉजी इसलिए मेरे को थोड़ी लगती है, क्योंकि मीडिया हाउस पे रहने की वजह से ये इस तरह से जो मेरा पॉइंट जाता है वो थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए जाता है कि वही चीजें ही सुशांत उसी चीज पे रिसर्च कर रहा था जिस चीज पे हम बात कर रहे थे। हम दिव्या भारती पे बात कर रहे हैं, दिव्या भारती के ऊपर उसमें जिक्र आता है, तो वही चीजें क्यों आ रही है, ये थोड़ा सा एक पॉइंट है कि उन्हीं चीजों के ऊपर क्यों जा रहा है जिस पे हम ही बात कर रहे थे। यानी कि हम ऐसा कैसे मान ले कि एक्यूरेट हमने जितनी बातें की वो सारी 100% सही है। तो इसी वजह से मेरे को थोड़ा बहुत क्रेडिबिलिटी पे डाउट होता है। बाकी वो रियल है या नहीं है ये तो सीबीआई जांच करे, उनको जब हैंडओवर कर दी जाएंगी, बट इतना से मेरे को डाउट है। और उनके हाथ में कैसे लगी सुशांत सिंह राजपूत की डायरी जब मुंबई पुलिस के हाथ में थी और मुंबई हार्ड डिस्क और उसके बाद वो आगे, तो ये थोड़ा सा एक प्रश्न है। बट उनको मैंने नहीं सुना तो उसके ऊपर मैं निष्कर्ष नहीं दे सकता। बट मैं सिर्फ उस इमेज पे जो नरेशन था उसको पढ़ के मेरी ये टिप्पणी है। हाँ, लेकिन उन्होंने बताया था शायद वरुण जी आपके शो में कि वो कैसा मिला था डायरीज का। अच्छा, मुझे नहीं पता क्या था, बता सकते हैं? ज्यादा डिटेल्स ऐसे तो नहीं उन्होंने कहा था, बस मुझे मिली है उसका जो वॉचमैन है उसके थ्रू। तो obviously वो that is something which she mentioned. मैं तो लेकिन उन टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, जो टेक्स्ट मैंने पढ़े थे उसको पढ़ के मेरे को नहीं लगा कुछ एक्स्ट्रा कुछ था। वो सब चीजें वही थी जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, उसी को घुमा फिरा के वहां पे मेंशन्ड है सारी चीजें। तो इसीलिए मेरे को बार बार लगता है, इसीलिए है क्योंकि कभी कभार हम किसी विषय पे बात करते हैं उसको ऐसे ना करके ऐसे पकड़ रहे हैं, मतलब यूं घुमा के पब्लिक को वापस उसी पॉइंट पे लाया जा रहा है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो सुशांत सिंह राजपूत की हार्ड डिस्क की नहीं सोहम जी we have to keep नहीं सोहम जी we have to keep little faith on her because see she's already fighting। शिल्पा जी, एक्चुअली मैंने कहा ना उनके ऊपर टिप्पणी कर ही नहीं रहा। एक्चुअली मेरी टिप्पणी उन पे है ही नहीं, क्योंकि मैंने अभी तक उनका सुना नहीं है। मेरी टिप्पणी बस उस एक इमेज के ऊपर है और मुझे ये भी नहीं पता वो इमेज वही है जो उन्होंने शेयर की। इसीलिए मैंने कहा कि एक इमेज शेयर हुई थी वो बात ठीक है, लेकिन वो क्या है ना, टिप्पणी कर रहा हूँ बिकॉज ये डायरी जो है वो बोल रही थी ना इनक्रिप्टेड है, ये है वो है करके। और दूसरी बात लाइक यू नो, हाँ उसमें जो नोट्स है अभी भी डेटा निकालना बाकी है। आउट ऑफ 700 GB वो अभी भी बाकी है। सो इट विल टेक टाइम। सो आई डोंट थिंक इट इज आई डोंट थिंक इट इज हम उनको देख लेंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद सोहम से टिप्पणी लेंगे। बट अदरवाइज से हमने कल सेशन में हाँ तब तक इस क्वेश्चन पे पॉइंट ही नहीं है डिस्कस करना। बट इतना जरूर है, मैं एक चीज कहूंगा शिल्पा जी, बॉटम लाइन इस पे ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन बाहर आनी बहुत जरूरी है। जो भी दीप्ति कह रही है, मैं वही बोल रही थी। नहीं, मैं वही बोल रही थी कि सीबीआई क्या कर रही है। सीबीआई वी ऑल आर वेटिंग फॉर, वी ऑल हैव फेथ। ओके, वो फेथ है। व्हाट राबिया मैम, शी वाज आल्सो, शी इज स्टिल हैविंग फेथ इन एजेंसीज, राइट? तो उन्होंने तब भी धोखा दिया था आफ्टर गेटिंग सो मच ऑफ एविडेंस। नाउ आल्सो दीस पीपल आर हैविंग एविडेंस, देन व्हाई आर नॉट दे कमिंग आउट? अरे कुछ तो सीबीआई एसएसआर का केस में 302 अप्लाई करके बाद में इन्वेस्टिगेशन प्रोसीड करो ना फर्दर। किसने मना किया है? बट दीस पीपल आर नॉट इवन यू नो वो रिप्लाई तो छोड़ो। लाइक अभी ये जो बोल रहे हैं ड्रग केस में कि ये इन्होंने हैंड ओवर किया एनसीबी को इसका फोन सिद्धार्थ पिटाने का। हाँ, वो तो ऐसा वो पब्लिक में ऐसा हुआ है, किसी ने ऐसा ऑफिशियली वो कंफर्म नहीं हुआ है that CBI has given to NCB. That's NCB people has not क्या बोलते हैं उसको, ऑफिशियली उन्होंने बोला नहीं है कि CBI ने हम लोग को दिया है करके। They only has said that it has detected from his phone. फोन नहीं दिया है, डंप मतलब डेटा दिया था जो उनको मिला था ना। हाँ, डेटा वही ANI ने इसको रिपोर्ट किया था शिल्पा जी। हाँ सर, तो ANI भी तो यही है ना सर, मीडिया में ही जाता है ना। वो नहीं, ANI मीडिया में जाता है, बट ANI जैसे आपको पता है ANI अगर किसी चीज को रिपोर्ट करता है इस तरह से कि दिया है तो इसके ऊपर एजेंसी बहुत जल्दी रिस्पॉन्स करती है, क्योंकि ANI एक तरह से इस तरह से सारे मीडिया हाउस को ये फीड देता है। ANI बहुत ज्यादा क्रेडिबिलिटी पे आ जाता है। आपको पता हो जितने भी मीडिया हाउस है, चाहे रिपब्लिक हो, बायस्ड मीडिया हो, कोई भी हो, सब इससे फीड ही लेते हैं ANI पूरे इंडिया में। तो इस वजह से ANI अगर किसी चीज को रिपोर्ट कर रहा है और वो गलत है तो इसके ऊपर जवाबदेही बन जाती है एजेंसी की कि भाई ANI ने गलत रिपोर्ट। जैसे एक बात, जैसा एक एग्जांपल लेती हूँ, जैसा ईडी ने
ड्रग का एंगल जब ये आया था तो उन्होंने ऑफिशियली बोला था कि हम लोग ने एनसीबी को हैंडओवर कर दिया है, बराबर? आपको याद होगा तो वैसे ही है ना, वैसे ही अभी अगर सीबीआई ने डम्प डेटा में जैसे दिया हुआ है तो लाइक अभी पब्लिक लोगों को इतना सब सीबीआई के बारे में ये हुआ वो हुआ, व्हाई आर नॉट देयर कमिंग इन फ्रंट एंड ऑफिशियली कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं बोलते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ? कुछ तो अपडेट होना चाहिए ना सर। और अभी मुझे एक बात और मुझे और एक क्वेश्चन है, जो केशव और नीरज का अंडर सेक्शन 164 मैजिस्ट्रेट के सामने उन लोग ने रखा है कि प्रूफ देंगे करके, किस बेसिस पे उसका वो सही बोल रहे हैं ऐसा? क्योंकि उनका तो स्टेटमेंट बदल ही रहे हैं। अब नीरज और केशव की बात कर रहे हैं ना? हाँ, देखिए मजिस्ट्रेट के सामने जब ये स्टेटमेंट दे देंगे उसके बाद वो इस तरह से माना जाता है कि वो एकदम सत्य कह रहे हैं उस चीज पे ना, और फिर उसके बाद वो वापस से यू टर्न लेते हैं, तो फिर यही जो नीरज और केशव है इन्हीं के ऊपर वही एक्शन ले लिया जाएगा। तो इस वजह से एक ये डर है नीरज और केशव के लिए, अगर वो मजिस्ट्रेट के सामने बैठ के गवाही दे दी है कि भाई अब हम जो कह रहे हैं एकदम सत्य है ना, हमें एनसीबी ने भैया जोड़ आजमाइश की है, तो यहाँ पे इनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो आज तक इन्होंने कितने ही बयान दिए हो, बट मजिस्ट्रेट के सामने जो देंगे वो वैलिड होगा, और उसके बाद ये बदल जाते हैं तो इनके लिए तो आप समझ के चलो जेल में जाना निश्चित है, कानून ये कहता है। Alright. okay. We'll definitely continue, Shilpa लेकिन ji. सर वी एक आर और रियली conversation वरीड करेंगे। बिकॉज हाँ, ठीक नहीं, है। आई अंडरस्टैंड, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। पर अभी आज जैसे अभी वाला ये वाला जो सेशन था, ये हम कर रहे थे टू शो